Hello students, good morning. In previous lecture, already we discussed about the what do you mean by force and pressure. Okay, so I hope you all are understanding about the force and pressure. So today we'll discuss about what is the effect of force. Understand? कि when we apply a force in any object or particle, then what happens? Okay. So first case, you know about what happens. कि first what? कि change in the state of motion. कि when we applied a force, okay, in any body or particle, just like if any body or particle moving in a straight line, okay, just like a ball here. See here, you have to see now. Okay, if balls are here, okay, and if we act a force, understand, 5 meter 10 meter है ना. So what happens if we act a force, then what happens, so that rest body particle is in motion. Okay, if any body particle in motion, just suppose like this ball is in motion, in slow motion, but we have to act a force, okay, then it's क्या, their speed will be increase होगी ना. when we act a force in a motion में ही हम क्या कर दिए, act force किए. okay, then what happen, their force will be, sorry, their speed will be increases. Understand? Okay. And second case, this is the first case. Second case, if any body or particle, okay, see here, any body or particle, suppose that, see here, okay, this is the, okay, ball, you know about the football ball. If we act a force, this is the, suppose that, moving body, okay, and if we act a force in the direction of their body, in direction of their body, in their opposite direction, suppose that we have to, okay, this is the motion, in motion, okay, this ball is in motion. If we act a force in their opposite direction, here is the force we have applied in that ball, then what happens, their speed will be what, decreases. what happens, their speed will be decreases. you know what ना, कि जब कोई बॉल है ना, किसी भी कोई भी वस्तु है, बॉल है, इन स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ओके, इन स्लो मोशन, जब इसको क्या करते हैं, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स इन देयर अपोजिट डायरेक्शन, ओके, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस मोशन में वो मूव कर रहा है उसी के अपोजिट में क्या करिए हम, व्हेन वी एक्ट ए फोर्स, देन व्हाट हैपन, देयर स्पीड विल बी रिड्यूस्ड, और आल्सो वी कैन से दैट स्टॉप द बॉडी, रुक जाएगी ना, तो द बॉडी विल स्टॉप या देयर स्पीड विल बी डिक्रीजेज. Understand? Okay. So in this way, okay, previous day already discussed about, okay, कि what happens. So if we applied a force, act on a body in direction of motion, then what will happen, their speed will be increases. Okay. Second case, if the direction of force or the body is opposite to the direction of motion की क्या, opposite, then what happen, speed will decreases. Understand? तो in both cases क्या, if a body or particle moving in a straight line, है ना, स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा स्पीड. अगर हम किसी अपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, व्हाट हैपन, देयर स्पीड विल बी डिक्रीजेज. अंडरस्टैंड? अब नाउ कीप द फोर्स एक्ट ऑन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर हम फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्ट इन एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, सपोज दैट एनी बॉडी ऑफ पार्टिकल, okay, laying in the table या anywhere in any surface. Understand? If we act a force, okay, exerted a force on the body, okay, that's football या anything, so what happens, if we act a force in that direction, okay, that direction means either in 45 degree 60 degree, okay, not in that direction, in forward direction या straight line, not in a straight line, okay, if any, okay, तिरछा हम कहते हैं ना, in a ट्रेंगुलर वे या टर्न ओवर, तो उस वे में अगर हम 40 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री एंगल में क्या करते हैं, फोर्स एक्ट करते हैं, देन क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो देन क्या, कि देयर बॉडी विल व्हाट, चेंज देयर क्या, डायरेक्शन एंड चेंज देयर मोशन. ओके, तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा एज वेल एज व्हाट, देयर मोशन विल बी आल्सो चेंज, मीन्स स्पीड विल बी चेंज. यू नो अबाउट ना. ओके, इफ यू एक्ट ए फोर्स, तो इफ द फोर्स एक्ट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इट कैन चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन. उसका स्पीड भी चेंज होगी एज वेल एज डायरेक्शन बोथ. ओके, इफ यू एक्ट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन.
एंगल के डायरेक्शन ऑफ मोशन हम कर रहे हैं तो क्या होगा, बोथ है व्हाट चेंजेज। अंडरस्टैंड दिस? डू यू नो कि व्हेन ए वेरी स्मॉल बॉडी हिट्स ए वेरी लार्ज बॉडी, अच्छा डू यू नो अबाउट ना कि क्या होगा व्हेन ए वेरी स्मॉल, जैसे क्या है ये टू स्मॉल बॉडी, स्मॉल बॉल है सपोज दैट, और ये क्या है वेरी लार्ज बॉडी है ना, लार्ज बॉडी, बोथ इन क्या अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे के विपरीत में है, अपोजिट, स्ट्राइक टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या किए कोलाइड, कोलाइड टू ईच अदर, लार्जर बॉडी एंड स्मॉलर बॉडी बोथ आर व्हाट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड कोलाइड टू ईच अदर। तो यू नो अबाउट ना कि लार्जर बॉडी है भैया हायर अमाउंट ऑफ मास एंड स्मॉलर है स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, यू नो अबाउट ना। तो यू नो अबाउट कि व्हेन वी है ना बोथ ऑफ बॉडी आर striking a collision to each other, then what happen? Both have exerted equal magnitude of force. Both exerted what? Equal magnitude of force. क्या फोर्स होगा यहाँ पे? इक्वल मैग्नीट्यूड है ना। भले ये क्या है लार्जर एंड स्मॉलर है, बट क्या होगा कि फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय बोथ द बॉडी, दोनों बॉडी के द्वारा जो फोर्स होगा आफ्टर द कोलिजन, देन व्हाट हैपन, द फोर्स विल बी है ना, फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल। जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल व्हाट will be equal. Understand? You know about ना Newton's third law of motion कि when we है ना equal in opposite direction, okay, action reaction, you know about ना क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल। तो सेम वे क्या हो रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे कोलिजन कर रहे हैं, स्ट्राइक टू ईच अदर, ओके, देन व्हाट हैपेंस, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल, ओके, बट देयर इफेक्ट विल बी व्हाट डिफरेंट। इफेक्ट क्या होगा कि ये लार्जर बॉडी है और ये स्मॉलर, जब दोनों स्ट्राइक किए तो क्या होगा इफेक्ट, देयर एक्सेलरेशन इज क्या होगा मोर, किसका मोर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन मीन्स क्या स्पीड, ये यहाँ से मूव कर जाएगा, बट ये क्या होगा थोड़ा सा खिसकेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन विल हैपन, ओके, बाय द लार्जर बॉडी, क्योंकि ये हैवी अमाउंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, देयर स्मॉल एक्सेलरेशन, ओके, इन लार्जर बॉडी, बट स्मॉल बॉडी में क्या होगा एक्सेलरेशन विल बी लार्जर, होगा कि नहीं, क्योंकि ये स्मॉल बॉडी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल बट एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स क्या कि लार्जर बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट स्मॉलर होगा, बट जो स्मॉल बॉडी का एक्सेलरेशन हो क्या हो जाएगा ग्रेटर। एक्सेलरेशन मीन्स क्या मीन्स कह सकते हैं आल्सो वी कैन से दैट कि ये यहाँ से क्या मूव कर जाएगा आफ्टर स्ट्राइकिंग, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉडी है, ठीक है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या होगा ये बॉडी जो है स्मॉलर क्या होगा वहाँ से मूव कर जाएगा, हिट है ना, वहाँ से फार अवे फ्रॉम द व्हाट लार्ज बॉडी। अंडरस्टैंड? दैट केस इज गिवन देयर हियर इन देयर, ओके, दैट्स सेम। अंडरस्टैंड? तो इन दिस वे बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, वी कैन सी, ओके, मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर इन आवर एवरीडे लाइफ, ओके, इन दैट केस। अंडरस्टैंड? एंड यू सी हियर कि मेनी टाइम्स यू नो अबाउट ना कि एक्सपीरियंस आल्सो टेल्स अस मेनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंजेज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन, कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि इफ एनी है ना, इफ वी एक्ट ए फोर्स, ओके, इफ एक्ट ए फोर्स इन एनी बॉडी ऑफ पार्टिकल, किसी बॉडी ऑफ पार्टिकल में हम फोर्स को एक्ट करते हैं तो क्या होगा, देयर इज नो चेंज ऑफ देयर डायरेक्शन, ओके, ऑफ मोशन, या आल्सो वी कैन से देयर पोजीशन। सपोज दैट जैसे वाल है ये, दिस इज अ वाल, सॉरी दिस इज क्या है वाल, यू नो अबाउट ना, ये वाल है आपका, वाल जान लो दीवाल। अब क्या कर रहे हैं, व्हेन वी एक्ट ए फोर्स 10 न्यूटन या है ना 100 न्यूटन हम एक्ट लगा रहे हैं, 100 न्यूटन या 10 न्यूटन 20 न्यूटन एनी है ना एच, ओके, तो क्या होगा व्हेन वी एक्ट ए 100 न्यूटन फोर्स, ओके, इन द वॉल, देन व्हाट हैपन, देयर पोजीशन विल बी चेंज और नॉट, नो, व्हाई दिस नॉट चेंज, बिकॉज दिस इज ए फिक्स पोजीशन है ना, देयर व्हाट लार्जर अमाउंट ऑफ है नीडेड फोर्स फॉर है ना द वाल के लिए क्या चाहिए, इट शुड बी लार्जर अमाउंट ऑफ फोर्स टू चेंज देयर प्लेस, ओके, बिकॉज यू नो अबाउट ना जस्ट लाइक अनदर एग्जाम्पल, जैसे यू नो अबाउट दिस इज ए हैवी स्टोन, लार्जर सॉरी है ना स्टोन, ओके, क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ क्या है स्टोन है, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोन, देयर वेट इज सो हैवी है ना, मिस कर सकते हैं देयर मास कितना होगा अप्रोक्स 100 kg, यू नो अबाउट सब 100 kg, एंड इफ वी एक्ट ए फोर्स, ओके, इफ वी एक्ट ए फोर्स सपोज दैट क्या हाउ मेनी 100 न्यूटन, ठीक है, वो 100 न्यूटन हम क्या कर रहे हैं फोर्स को एक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा
देयर पोजिशन विल चेंज, द स्टोन है ना, पोजिशन ऑफ द स्टोन विल चेंज और नॉट, नो चेंज। वाई? क्योंकि ये क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या है, ये स्टोन है ना, देयर वेट क्या है, लार्जर मास, और हम 100 न्यूटन यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्थिति चेंज होगी, देयर पोजिशन नॉट, देयर पोजिशन विल बी नॉट चेंज। क्यों? बिकॉज 100 kg है या 100 न्यूटन है, यू नो अबाउट ना, ये kg है, kg मीन्स यू नो अबाउट ना, मास इसका है। अगर इसका हम फोर्स यहाँ निकालेंगे कि हाउ मेनी फोर्स रिक्वायर्ड टू पोजिशन है ना, चेंज देयर पोजिशन ऑफ स्टोन, अगर इस स्टोन को चेंज करने के लिए कितने, हाउ मेनी फोर्स आर एक्ट, है ना, शुड बी एक्ट, कितना फोर्स चाहिए फॉर है ना मूविंग देयर, ओके, चेंजिंग देयर पोजिशन ऑफ स्टोन। तो यू नो अबाउट ना कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, यू नो अबाउट W बराबर क्या होता है mg, यू नो अबाउट ना क्या, W बराबर mg, मास कितना है 100 kg, और ग्रेविटी कितना है अप्रोक्स 10, 9.8 मीटर पर सेकंड, अप्रोक्स 10, मतलब 100 इंटू 10 कितना 1000 क्या है आपका, इसका न्यूटन वेट चाहिए, है ना, दिस इज फोर्स, W इक्वल टू F, आल्सो वी कैन से दैट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स, आल्सो वी कैन से दैट। तो फोर्स और वर्क डन इक्वल होते हैं, तो फोर्स कितना चाहिए, हाउ मेनी फोर्स रिक्वायर्ड, कितनी जरूरत है 1000 न्यूटन की, ओके, टू डिस्प्लेस दैट स्टोन, उस स्टोन को डिस्प्लेस करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, ओके, वी नीडेड हाउ मेनी फोर्स, वी नीडेड 1000 न्यूटन फोर्स, एंड वी हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, ओके, ओनली 100 न्यूटन फोर्स, ओके, फॉर मूविंग दैट हैवी स्टोन, ह्यूज अमाउंट ऑफ, ओके, स्टोन 100 kg। तो क्या ये पोजिशन होगा चेंज, पोजिशन है ना, द पोजिशन स्टोन ऑफ द क्या, पोजिशन ऑफ द स्टोन विल बी व्हाट, चेंजिंग और नॉट, नो चेंज, ओके। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो ए फोर्स में नोट देयरफॉर ऑलवेज सक्सीड इन ब्रिंगिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट, समटाइम इट ओनली टेंड्स टू डू सो। इस तरह से बहुत सारी ऐसी स्थिति आती है ना, जिसमें क्या होगा कि हम फोर्स जो है उसमें वर्क नहीं करता है, ए फोर्स में नोट देयरफॉर ऑलवेज सक्सीड इन ब्रिंगिंग चेंज, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, सम जैसे वॉल है, तो क्या वॉल को क्या वी कैन चेंज देयर पोजिशन, नो, वॉल की पोजिशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके। तो कुछ ऐसी है ना, सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्टिकल आर देयर, है ना, कि वी कांट चेंज देयर पोजिशन, ओके, अंडरस्टैंड। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकेंड केस, change in size shape of an object, you know about ना, कि when we apply the force of any object or particle, then क्या कि change their size and shape, जैसे you know about ना spring, just like see here, this is the spring, okay, ये spring है, तो when we press act a force, okay, when we act a force on that spring, तो what will happen, क्या होगा कि this spring will क्या small होगा कि नहीं, when we act a force, या रबर है, रबर बैंड, ठीक है, when we stretch them, then क्या होगा, इट्स ग्रेटर लार्जर सरफेस एरिया होगा ना, when we stretch them, ठीक है, फिर हम जैसे छोड़ देते एज यूजुअल इन शेप होगा ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, आल्सो वी कैन से दैट कि when we act a force in any body or particle, okay, just like a ball या है ना, spring on the spring या rubber band, okay, then what क्या होगा, their shape and size will be changed, understand। जैसे see here, you know that now make चपाती, जैसे चपाती you know about ना, फ्लोर, आटे की चपाती बनती है, फ्लोर, ओके, तो फ्लोर को हम क्या करते हैं कि टेक सम डफ मीन्स वही है ना, एंड देन रोल इट बिटवीन आवर पाल्म्स टू मेक इट स्फेरिकल। हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल कर सकते हैं ना, सी हियर, ये क्या है, डफ है, डफ मतलब वही गोला आटे की फ्लोर का, है ना। तो आटे की गोली को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन, है ना, चेंज देयर शेप एंड साइज जैसा हम चाहें, ओके, स्फेरिकल, ओके, रेक्टेंगुलर, जैसा भी एज यूजुअल, ओके। तो वी कैन चेंज देयर शेप एंड साइज। तो व्हाई दिस हैपन, ड्यू टू द व्हेन वी एक्ट ए फोर्स, जब उसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल इन आवर एवरीडे लाइफ, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे बैलून को, है ना, देयर शेप विल बी चेंज ऑफ बैलून, स्प्रिंग, रबर बैंड, अंडरस्टैंड। जैसे पोटर क्या करता है, चेंज देयर शेप एंड साइज ना, ए पोटर मेक्स पोर्स ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स, ओके, फ्रॉम नीडेड, ओके, क्ले को क्या करती है वो नीड करके वो, है ना, अच्छी तरह से क्लियर कर सकती है। तो इन दिस सिचुएशन द चेंजेज इन शेप एंड साइज इन बोथ, ओके, व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स, तो ये क्यों होती है, ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ए फोर्स, एक्ट ए फोर्स,
ओके, तो मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, क्या क्या कर सकता है व्हेन वी अप्लाई द फोर्स इन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल। तो फर्स्ट केस कि मे मेक ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मूव करने लगेगा। सेकेंड क्या है, मेक चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, इसके स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, इस डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। थर्ड, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ, ओके, इफ एनी बॉडी ऑफ पार्टिकल ओके मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन या एनी डायरेक्शन, तो वी कैन चेंज देयर डायरेक्शन। मे ब्रिंग चेंज इन साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू नो अबाउट ना। मे काउज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, मतलब बहुत सारे हम है ना, वी कैन चेंज मेनी, ओके, when we apply the force, act a force in any body or particle, understand? Okay, do you know कि an object continues to be in motion, okay, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, कंटिन्यू इन मोशन, ओके, विथ द सेम स्पीड, सेम स्पीड से क्या हो, कंटिन्यू मोशन में, इन सेम डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन, ओके, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक हम उसमें क्या अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ओके, एक्टेड व्हेन बी व्हाट, विच टाइप्स ऑफ फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, अंडरस्टैंड। तो इट इज नेचुरली टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टू रेसिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जैसे यू नो अबाउट द कि इफ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट्स ओके इन आइदर इन मोशन और रेस्ट, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, ओके, और क्या इट विल इन मोशन तो दैट्स इन मोशन, ओके, अनटिल when we applied an external force, जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ओके, that body will be what, at rest or in motion, ओके, तो that body will rest or in motion, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ओके, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही, when we applied, until when we applied external force या अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस मीन्स वही एक्सटर्नल फोर्स, कि जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ओके, वी डोंट है ना एक्ट एनी ओके एक्सटर्नल फोर्स, दैट्स क्या कि दैट्स बॉडी और पार्टिकल विल है ना एज यूजुअल, एज यूजुअल मीन्स व्हाट, कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन तो दैट इन मोशन, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से क्या होती है कि दिस फिनोमिनन या दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यही है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके, यही न्यूटन फर्स्ट लॉ है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ओके। व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि व्हेन वी ए बॉडी और ऑब्जेक्ट्स ओके मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एनी डायरेक्शन, ओके, या रेस्ट एनी बॉडी और पार्टिकल इन रेस्ट और मोशन, दैट इज रेस्ट और मोशन, वो मोशन में रहेगा, ओके, दे आर सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन, ओके, इन सेम वही में रहेगा, सेम एज यूजुअल, अनटिल वाई, अनलेस व्हेन वी एक्ट ओके एनी एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, जब तक उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, देन क्या होगा, दैट बॉडी और पार्टिकल विल है ना रेस्ट और आइदर इन मोशन, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन है तो मोशन में ही, ओके। तो दैट ओके लॉ इज नोन एज फिनोमिनन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ, अंडरस्टैंड, ओके। now factors affecting okay associated with the magnitude of force needed, कि factor associated which types of force associate with the magnitude of force needed, कि जितने भी फोर्स मैग्नीट्यूड होते हैं, मैग्नीट्यूड यू नो अबाउट ना, मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, तो मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू कि हाउ मेनी फोर्स एक्ट ऑन बॉडी ऑफ पार्टिकल, ओके, जैसे टू बॉडी कोलिजन टू ईच अदर, टू बॉडी क्या किया, कोलाइड टू ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हाउ मेनी मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड आपका हुआ, सपोज दैट 10 न्यूटन या 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई हुआ है बोथ बॉडी के द्वारा, तो क्या होगा, तो ये 100 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट इज देयर वैल्यू, क्वांटिटी, फोर्स, अंडरस्टैंड। तो वी नो दैट कि हार्डर वी किक ए फुटबॉल, जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं हार्डर, तो फास्टर मूव्स क्या होगी, व्हेन वी बिकॉज व्हेन वी अप्लाइड ए ग्रेटर फोर्स ना, देन इट क्या मूव फास्टर, तो दैट इज ग्रेटर इज द व्हाट अप्लाइड फोर्स, तो greater is the change in the speed of object when we act exert a what greater amount of force okay upon any body or particle, then what happen, so their speed will be what changes means increases,
यू नो अबाउट ना, ग्रेटर इज द चेन, उसमें चेन क्या होगा, ग्रेटर होगी। जैसे कंसिडर लाइटर मास कार, सपोज दैट कार है आपका, ओके, एंड ए हैवियर मास ट्रक है, लोडेड ट्रक, ओके, पार्क्ड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, एक हॉरिजॉन्टल रोड में क्या है, पार्क है बोथ, है ना, कार एंड व्हाट, हैवी ट्रक। वी ऑल नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस कि दैट मच ग्रेटर पुश फोर्स, है ना, इज नीडेड टू मूव द ट्रक देन द कार। यू नो अबाउट ना, जैसे एक कार है, सपोज दैट, मान लो कि सपोज दैट, ओके, दिस इज द कार एंड दिस इज द ट्रक, यू नो अबाउट ना, टू ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल है इन स्ट्रेट लाइन। तो पुश करने के लिए, फॉर पुशिंग द ऑब्जेक्ट्स, है ना, बिटवीन द कार एंड, है ना, ये दैट ट्रक, लोडेड ट्रक, तो किसको फोर्स चाहिए, विच कैरी मोर फोर्स, ओके, टू पुश, किसको चाहिए, ग्रेटर फोर्स। यू नो अबाउट ना, लोडेड ट्रक हैवी क्या है, लोडेड ट्रक जो है, देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ व्हाट मास, इसका मास क्या है, ज़्यादा है इन कंपेयर ऑफ कार। यू नो अबाउट ना, तो नाउ सपोज वी सप्लाई द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम टू बोथ द कार एंड ट्रक। अगर हम सेम टाइम में अगर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, बिकॉज कार को क्या चाहिए, सॉरी, कार को क्या चाहिए, स्मॉलर फोर्स, बट ये जो लोडेड ट्रक है इसको क्या चाहिए, हैवी फोर्स। यू नो अबाउट ना, जिसको चाहिए 10 न्यूटन तो इसको कितना चाहिए, 100 न्यूटन। यू नो अबाउट ना, बिकॉज इस क्या है, इस मास इज ग्रेटर इन कंपेयर ऑफ कार। यू नो अबाउट, तो क्या कर रहा है कि वेन वी अप्लाई द सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, वेन वी एक्ट ए सेम फोर्स ऑन द सेम बॉडी फॉर सेम टाइम टू द बोथ द कार एंड ट्रक्स, ओके, कार एंड द, ओके, ट्रक, तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ कि कार पिक्स अप ए ग्रेटर स्पीड देन द ट्रक इन द टाइम, होगा ना, कि द कार पिक्स अप ग्रेटर स्पीड देन द ट्रक इन दैट टाइम। तो उस समय क्या होगा कि एक स्टेबल क्या है, आपका ट्रक है और एक क्या कार है, इफ़ वी, है ना, इसको 10 न्यूटन जरूरत है ना, हाउ मेनी फोर्स नीडेड, 10 न्यूटन फॉर द कार एंड फॉर द ट्रक 100 न्यूटन नीडेड, ठीक है। तो हमने सेम न्यूटन को लगा लिया, 100 भी यहाँ लगा रहा है, 100 यहाँ भी, तो इफ़ वी एक्ट ए फोर्स इन बोथ इन द सेम टाइम में दोनों पे हम एक्ट कर रहे हैं, ओके, इन ट्रक एंड व्हाट, कार, तो क्या होगा, यू नो अबाउट ना, कि कार का जो स्पीड होगा ये क्या होगा, जब हम फोर्स 100 न्यूटन एक्ट कर रहे हैं इन, है ना, जस्ट लाइक ए किसके इक्वल, इन इक्वल ऑफ ट्रक, तो कार क्या होगा, इट्स द चेंजिंग ऑफ द कार इज मोर इन कंपेयर ऑफ द ट्रक, मीन्स इसका मोशन जो हैगा, स्पीड जो होगी कार का, वो क्या होगा, ग्रेटर इन कंपेयर ऑफ ट्रक, क्योंकि ट्रक को जितना चाहिए था एज यूजुअल उतने हैं अकॉर्डिंग देयर मास, बट क्या है, कार नीडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इन कंपेयर ऑफ ट्रक, बट इट गिवन व्हाट, कितना मैंने दिया, हाउ मेनी फोर्स, 100 न्यूटन, तो सो कार विल मूव मोर इन कंपेयर ऑफ ट्रक, स्पीड होगी कि नहीं कार की, द स्पीड ऑफ द कार विल, है ना, ग्रेटर इन कंपेयर ऑफ ट्रक, यू नो अबाउट ना। तो वी दस रियलाइज के मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड एक्वायर्ड बाई इट, स्पीड जो होगी ये और ना, कि आर बोथ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एंड दैट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड। तो दोनों क्या होते हैं कि बोथ पैरामीटर्स जो हैं मेजरमेंट करने का पैरामीटर्स, है ना, फॉर स्पीड, है ना, स्पीड एक्वायर्स, क्या इसका स्पीड है, हाउ मेनी फोर्स एक्ट, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही क्या होगा, वो स्पीड करेगी, है ना, दैट बॉडी ऑफ पार्टिकल इन स्पीड, अंडरस्टैंड। तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड, क्या डिटरमाइन करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि कितना, हाउ मेनी फोर्स इज नीडेड, ओके, बाय द बॉडी और पार्टिकल, अंडरस्टैंड, जस्ट लाइक हियर, डू यू नो, सी हियर, दिस इज द, यू नो अबाउट ना, स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस है फॉर मेजरिंग द, दिस इज आल्सो पैरामीटर फॉर मेजरिंग द, है ना, वेट को मेजर करने के लिए, जैसे यू नो अबाउट दिस इज द हुक मीन्स क्या है ये, फॉर मेजरिंग द इफ एनी बॉडी और पार्टिकल, आपको क्या करना, वेटिंग, है ना, तो यू हैव टू हैंग इन दैट हुक, इस हुक में क्या करते हैं, हैंग कर देते हैं बॉडी और पार्टिकल को, ओके, दिस इज द पॉइंटर मीन्स क्या करता है, पॉइंट, हाउ मेनी देयर वेट, है ना, दिस इज द मार्किंग, तो ये पॉइंटर है, पॉइंट करता है ना, दिस इज द ग्रेजुएटेड स्केल है ना, स्केल मीन्स क्या, यू नो अबाउट ना, दिस इज द स्केल, जैसे इंच में देखते हो ना स्केल, तो वही स्केल है, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, है ना, हाउ मेनी देयर, है ना, वेट, और दिस इज द रिंग मतलब फोर, क्या रिंग, क्या काम है इसका, टांगने के लिए हैंग,
फॉर मेजरिंग दैट बॉडी और पार्टिकल, कोई बॉडी और पार्टिकल है। तो सी हियर कि डू यू नो स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या है कि ये सिंपल डिवाइस, दिस इज द सिंपल डिवाइस दैट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स। क्या करती है? फोर्स को मेजर करती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। इट कंसिस्ट ऑफ ए क्वाइल स्प्रिंग, एक क्वाइल स्प्रिंग होती है ना, इनसाइड द, है ना, दिस स्प्रिंग बैलेंस, ओके। और विच गेट्स स्ट्रेच्ड, जो क्या होती है? स्ट्रेचिंग बाय द हुक, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, है ना, हैंग ऑन दैट हुक। तो व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय ए पॉइंटर। पॉइंटर के द्वारा क्या होती है? मेजरिंग, हाउ मेनी, ओके, फोर्स नीडेड, अंडरस्टैंड, वेट। तो मेजर बाय पॉइंटर मूविंग ए ग्रेजुएटेड स्केल, ये ग्रेजुएटेड स्केल होती है ना, दैट्स, ये क्या करती है? मूव, ऊपर नीचे, डाउन और, है ना, अप, ग्रेजुएटेड स्केल। तो द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और यही जो रीडिंग क्या करती है? इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि हाउ मेनी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 500 न्यूटन, हाउ मेनी नीडेड फोर्स, ओके, अंडरस्टैंड, फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल को मेजर करने के लिए। तो यही क्या आपका है? स्प्रिंग बैलेंस। तो यू नो अबाउट ना, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, 1 न्यूटन, यू नो अबाउट ना, दैट इज न्यूटन। तो द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। अब किसी बॉडी का मास क्या है आपका? 1 kg, ओके। तो हाउ मेनी एक्सेलरेशन देयर? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स 1 न्यूटन, ओके। द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। 1 न्यूटन हम कब कहेंगे? व्हेन वी विल सेड कि फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन, व्हेन विल सेड कि व्हेन दैट बॉडी एक्सेलरेशन व्हाट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देयर मास इज, what is their mass will be 1 kg, okay, 1 kg mass और their acceleration is 1 meter per second square। so क्या होगा? F equal to 1 न्यूटन। you know about ना, फोर्स का फॉर्मूला जानते हो? you know about फोर्स, F equal to क्या होता है? ma, okay, you will learn about the, है ना, what is the formula of force, what is the first law of Newton, second law of Newton, third law of Newton in है ना, which classes in okay, next class, that means class 9th, okay, you will all study about all these things। तो सो क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फोर्स? F इक्वल टू ma। a मीन्स मास, व्हाट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स? a मीन्स एक्सेलरेशन, ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्टिकल, ओके। इफ मास इज 1 kg and acceleration is 1 kg, then what is the force? 1 Newton, okay, understand? If mass is 1 kg or force is 1 Newton, then what is acceleration? 1। तो सी, है ना, दैट इज गिवन कि द फोर्स इज सेड टू बी 1 Newton इफ इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, ओके, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। तो दिस इज द व्हाट? स्प्रिंग बैलेंस, अंडरस्टैंड। अब न्यू अबाउट फोर्स हैज ए बोथ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। यू नो अबाउट ना कि फोर्स तो बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मीन्स, यू नो अबाउट ना, मैग्नीट्यूड जस्ट वी हैव टू टॉक अबाउट जस्ट प्रीवियस मोमेंट कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट इज देयर फोर्स, हाउ मेनी न्यूटन ऑफ फोर्स नीडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल के कितना फोर्स चाहिए, हाउ मेनी फोर्स इट शुड बी नीडेड, ओके। 100 न्यूटन, 10 न्यूटन, दैट इज क्या? मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन यू नो अबाउट ना कि है ना, विच डायरेक्शन दैट्स बॉडी ऑफ पार्टिकल मूव इन विच डायरेक्शन। तो सो क्या कि व्हेन वी एक्ट ए फोर्स इन एनी बॉडी ऑफ पार्टिकल, दैट मीन्स 10 न्यूटन, 100 न्यूटन या 100 न्यूटन या जो भी न्यूटन हम, है ना, एज वाट एवर, ओके। तो दैट, ओके, फोर्स बी अप्लाइड, देन इट्स क्या? चेंजिंग देयर डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स क्या? इट आल्सो शो द डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है वो, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो सो आल्सो वी कैन से दैट व्हाट कि फोर्स हैज बोथ, फोर्स कंटेन carry both magnitude as well as direction, understand? Okay, I hope you all are understand. We will discuss mainly, okay, explanation about this in next topic, next lecture, understand?